तो नॉर्मली जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर 2 में आता है यूजुअली, मीन आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन और थियोरेटिकल ओरिएंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी टाइटल है. सेकंड, नॉर्मली द चैप्टर इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर. तो इन चैप्टर नॉर्मली वी राइट लाइक नॉट रिव्यू ऑफ लिटरेचर बट रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इट विल इंक्लूड एवरीथिंग. So review of related literature we write so that that review pertains to our study. So chapter 2, review of literature. That way you can write in actual thesis. Now first, because we are studying the theoretical aspect of it, actual review we are doing in paper 2. So why to make a review? How it comes to our use? Now one is to know what other related researchers talk about the variables. I mean, whatever these variables you have selected in a research title, you have different variables, the variables like academic performance, motivation, test anxiety, socioeconomic status. All these are variables. Age, grade, all these could be variables. So whatever each the variable we have there in our research problem, then whether there are other researches which have conducted the study. So that is one. Secondly, to find the research gaps on explored areas, कि कौन सी एरिया है जहां पे रिसर्च हुई नहीं. वेरिएबल्स में रिमेन द सेम बट कोई पर्टिकुलर फील्ड जहां पे उनकी रिसर्च नहीं हुई, तो वी गेट द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज. देन टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, क्योंकि जब रिसर्च गैप्स वी फाइंड देन वी बेस्ड ऑन दैट वी formulate or state the hypothesis for that study. Hypotheses are widely used in your descriptive and experimental research. Qualitative research, sometimes we do not formulate hypotheses, but in place we place the research questions. So about what is hypothesis, how to state, and which are the sources to get hypothesis, all this will be studying subsequently under the unit hypothesis. Then fourth purpose, to strengthen the theoretical understanding of the problem. I mean whatever problem we have selected, automatically जब हम review के support में करेंगे तो theoretically sound हो जाता है. तभी मैंने वो ये जो इसके पहले भी वही बात कर रहा था कि जब हम review लिखने जाएंगे साथ साथ chapter 1 का भी material मिल जाता है. वाइस वर्सा, जब चैप्टर 1 का इंट्रोडक्टरी लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे रिव्यू आता है जो आप सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डाल सकते हैं. तो दिस टू गो साइमल्टेनियसली, तो ऑटोमेटिकली आवर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस. तभी देयर हैव बीन थीसिस, एक थीसिस जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, हम कुछ थीसिस ऐसे भी मिलेंगे कि चैप्टर 1 थियोरेटिकल ओरिएंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसे भी मिलेंगे. उसमें इंट्रोडक्शन नहीं लिख के हम वही लिखते हैं. मैंने क्या लिखा है, सॉरी, you can see in this student scholar like theoretical orientation of the problem. So in place of just simply introduction, chapter 1 theoretical orientation of the problem. So because in chapter 1 what we do, we make that how the problem is finds place in the context of its theory, different theories. I mean what different sources like your different thesis, different theory, different experts, different textbooks, different reference books, how they have looked into that problem. वो जब हम करते हैं उसमें
it helps it. So automatically when you review, वो अपना theoretical viewpoint of that problem automatically धीरे धीरे वो strengthen करेगा. So these are the purpose why we make a review. But in that case, which are the sources to dig into? कहाँ से हम वो review करेंगे? There are many sources, many you must have referred also. These are just listing down. So the most important are journals. Nowadays, both online, print, and digital journals. Journals database are also there. So journals of that and related field. अगर आप मैनेजमेंट में कर रहे हो तो मैनेजमेंट की जर्नल्स में आपको मिलेंगे. कुछ हो सकता है आपका साइकोलॉजी में भी मिले, कुछ हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिले. सो इट डजंट मीन कि आपका जर्नल इन मैनेजमेंट वही रेफर करना है, नॉट नेसेसरी. गो बियॉन्ड दैट. जहाँ पे भी wherever you get sources, then all those journals will be there. Then encyclopedias. Encyclopedias are the reservoir of knowledge. जैसे एक तालाब होता है, डैम को हम रिजर्वर इसीलिए तो बोलते हैं. डैम में क्या होता है? जो बांध होता है पानी ही होता है, उसका कोई अनलिमिटेड है, उसका देख भी नहीं सकते इतनी दूर तक फैला हुआ था, तो अनलिमिटेड. तो सेम वे जैसे एक तालाब पानी का वो होता है, ऐसे एनसाइक्लोपीडियाज आर द कंटेनर ऑफ नॉलेजेस. कई एनसाइक्लोपीडिया है. वन जनरल एनसाइक्लोपीडिया, वो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. कितने वॉल्यूम्स है? आप खड़े कर दो ऐसे तो ऊपर आप बैठ सकते हो ऐसे टूल जैसे. फिर सब्जेक्ट वाइज एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ न्यूरोलॉजी इन हेल्थ साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियरल साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उसमें तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आते हैं उसमें. देन स्पेसिफिक एनसाइक्लोपीडिया भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई उसी के ऊपर होगा. तो व्हाट एवर दिस एनसाइक्लोपीडियाज. नाउअडेज एनसाइक्लोपीडियाज अभी वो हैंडल करना और मुश्किल होती है. नॉर्मली जो प्रिंट वर्जन होती है एनसाइक्लोपीडियाज में, सपोज देयर आर 20 वर्जन, 20 एनसाइक्लोपीडियाज है, वॉल्यूम 1 2 3 4 ऐसे. तो जो लास्ट एनसाइक्लोपीडिया होता है उसमें इट इज फुल ऑफ इंडेक्स कि आप कहाँ से ढूंढोगे कोई टॉपिक. तो ये 12 इतना कितने दिन तक ढूंढोगे. तो बेस्ट इज टू गो फॉर द इंडेक्स. लास्ट वॉल्यूम में इंडेक्स होता है, वहां पे आपको टॉपिक मिल जाएगा. वहां से फिर उसमें लिखा होगा कि 1 8 5 10 मीन किस वॉल्यूम में वो अवेलेबल है. फिर उस वॉल्यूम को पकड़ना है और वैसे ढूंढोगे. लेकिन अब वो चीजें तो इजी हो गया है, मिल गया आपको तो बटन कोई क्लिक मिल जाता है. मिला गया गूगल सर्च किए मिल गया. या फिर जब ऑनलाइन है एनसाइक्लोपीडिया अवेलेबल है उससे यू कैन फाइंड. बट नेवरदलेस जब लाइब्रेरी में जाते हो यू कैन रेफर टू एनसाइक्लोपीडिया. जो प्रिंट वर्जन है वो भी रेफर कर सकते हो उसमें. तो देयर आर रेपुटेड पब्लिशर्स होते हैं. इंडियन पब्लिशर्स भी हैं जो एनसाइक्लोपीडियाज पब्लिश किए हुए हैं. बट जो बहुत सारे एनसाइक्लोपीडियाज हैं अवेलेबल इन डिफरेंट लाइब्रेरीज. हेलो. देन थर्ड सो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स वॉल्यूम. कई होती है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स, पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जैसे 3 साल 4 साल हुआ तो जो रिसर्चेस कंडक्ट हुए हैं उसमें वो एक ओनली अबाउट एक्सट्रैक्ट्स वो रिव्यू करते हैं उसके, और इन द नेम ऑफ सर्वे ऑफ रिसर्चेस, देन रिव्यू ऑफ रिसर्च. ऐसे जैसे अगर वो हम सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन है, वो MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा पब्लिश करता रहा 3 4 5 साल ऐसे, उसके बाद NCERT करता है. तो सेम वे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे डू अबाउट द सर्वे ऑफ रिसर्च, रिव्यू ऑफ रिसर्च के नाम पे जाता है. तो बट व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे वो जर्नल्स में आपका फुल पेपर डिफरेंट आ जाता है. इस केस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट्स यू विल फाइंड.
research abstracts, so that you can go for further details. Then review you can find in seminar conference report. कई conference seminar होता है जो research based होता है, कई होते हैं जो mixed होते हैं, theoretical as well as research based, कुछ only research purpose के लिए भी होता है। तो उनके जो रिपोर्ट हैं वहां पे जो पेपर प्रेजेंट किया, आइदर एब्स्ट्रैक्ट्स और दो चीजें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट्स पब्लिश होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सोवेनिर, कॉन्फ्रेंस के पहले, और उसके कॉन्फ्रेंस के बाद जो पब्लिश होता है दैट इज प्रोसीडिंग्स, उसमें फुल पेपर आएगा आपका। बोथ ऑफ दिस यू कैन फाइंड योर स्टडी आइदर, तो जो भी अवेलेबल है सेमिनार कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, देन ओरिजिनल थीसिस, जो भी यूनिवर्सिटी में जाओगे उनकी सबमिटेड जो थीसिस है उसका ओरिजिनल कॉपी मिलेगा लाइब्रेरी में या रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। तो ओरिजिनल थीसिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि क्या होता है जो टॉपिक है उसके ऊपर तो है ही, बट उसके अलावा उन्होंने रिलेटेड स्टडी जो लिटरेचर में कोट किया है वो भी आपका हो गया उसमें। सो ओरिजिनल थीसिस आर द सोर्स ऑफ रिसर्च। अभी डे बिफोर यस्टरडे, परसों यहाँ पे APJ सत्या यूनिवर्सिटी में अपना एक PhD अवार्ड हुई है, वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इन द फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक मैडम ने किया है मोर देन 5 years, तो उनका अभी जस्ट हाल ही में अवार्ड हुई है, जस्ट डे बिफोर यस्टरडे ओनली। So original thesis, then published books on research, like अगर थीसिस सबमिट किया कर दिया, आपका डिग्री भी अवार्ड हो गई, तो उसके बाद कई ऑथर्स हैं जो उसको बुक फॉर्म में पब्लिश करते हैं, तो उसके क्या फायदा होती है? 1, डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च, आपने क्या स्टडी किया दुनिया को पता चलेगा, क्योंकि आजकल तो वो नंबर भी हो जाता है ना ISBN, तो कहीं पे भी उसके डिजिटल फॉर्म आ जाती है। तो एक ये हो गया डिसेमिनेशन ऑफ दिस। देन पब्लिश्ड बुक्स से और एक फायदा होती है, क्योंकि आपके नाम पे एक बुक भी आ गया, आप जब कहीं पे ज्वाइन करते हो आपकी क्रेडेंशियल्स बढ़ता है, आपके CV में बढ़ेगा पब्लिश्ड बुक्स एंड सो ऑन सो, तो ये सेकंड फायदा है। उसके मार्क्स होती हैं इन प्रमोशन, तो आपको पता है उसका। सो बुक्स पब्लिकेशन, then thirdly book publication में for your information there are organizations which support it। अगर आपने किया है रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज उसको आप थीसिस दोगे एंड सपोर्ट मांगोगे, दे विल फंड यू आल्सो, क्योंकि क्या होता है पर्टिकुलरली आई एम रेफरिंग टू रिसर्च पब्लिकेशन। रिसर्च पब्लिकेशन में क्योंकि क्या होता है जो पब्लिशर्स है वो बुक ज़्यादा नहीं बेचता है, क्योंकि वो जो PhD कर रहे हैं या लाइब्रेरी ही खरीदेंगे ना, तो उसके लिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेते हैं या फिर वो पेड लेते हैं। तो इन दैट केस ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको फंड भी करते हैं, बट यू नीड टू अडॉप्ट द प्रोसीजर, उनको अप्लाई करना है अनदर थिंग। दैट इज अबाउट पब्लिशिंग। सिमिलरली उसके पहली पॉइंट ओरिजिनल थीसिस, जैसे ही आपका पब्लिक थीसिस हो गया पब्लिश अवार्ड, तो ये सारे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके जो सर्कुलर है, हर एक जो अवार्ड होती है एक सर्कुलर होती है जो कॉपी जाती है रजिस्ट्रार ऑर्गेनाइजेशंस को भी, यूनिवर्सिटीज को है ना, तो वहाँ से पता चलता है कि ये थीसिस पब्लिश ये सबमिट हो गई, अवार्ड हो गई, तो उसके बाद फिर वो ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICSR वो डायरेक्टली यू कैन वो कॉन्टैक्ट भी करते हैं कि वुड यू प्लीज सेंड योर a copy of your thesis to our organization. For this, you will be paid a remuneration of so and so. तो आपको पैसे देंगे वो, आप जो थीसिस करोगे उनको दे दो, वो पैसे देंगे। मैंने जब किया था थीसिस, मेरा 1991 का था, तो इसलिए तो उस टाइम पे कम था, बट देयर वाज वैल्यू फॉर दैट। तो उसमें जब था मैंने नहीं लिखा था कभी ICSR, वहां से आया कि you have this thesis, would you like to submit, and for remuneration we will be paying you a sum of ₹400, 400 रुपये का था उस टाइम पे। और मैंने आपको बता दूं मैंने भेजा था और मुझे
₹400 मिला उस टाइम पे। तो यू कैन डू ऑल्सो। वहाँ जब हो जाता है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को कॉपी भेजो, उनको पता चलता है वो खुद लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो आप ऑन योर ओन यू कैन डू। और दूसरा, ऑटोमेटिकली उनको इससे भी पता चलता है कि जब भी आपका होगा अवार्ड, तो कॉपी जाता है उसका जो सर्कुलर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज की जो वीकली क्रॉनिकल है, दैट इज यूनिवर्सिटी न्यूज। तो यूनिवर्सिटी न्यूज में उसमें आता है रिसर्च इन प्रोग्रेस एंड थेसिस ऑफ द मंथ। तो थेसिस ऑफ द मंथ में जो अवार्ड हुए हैं, एवरी वीक आता है। वन टाइम एक हफ्ते में आएगा नेचुरल एंड फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अलग में आएगा सोशल साइंस, लिटरेचर एंड मैनेजमेंट। तो ऐसे दो अल्टरनेटली आता रहता है। तो वहाँ भी उनको मिल जाता है कि ये अवार्ड हो गई, फिर वो ऑटोमेटिकली लिखते हैं। और इस कंटेक्स्ट में पहले भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि एज ए रिसर्चर आप इसको टेक द मेंबरशिप ऑफ यूनिवर्सिटी न्यूज। आप 2 साल का पहले इनिशियली, या चाहे तो 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लो वहां से, तो आपको बहुत बहुत सारी चीजें मिलेंगे आपको जो हेल्प करेगा। जब तक आप रिसर्च ये नहीं एज ए रिसर्च स्कॉलर हो, आप डोंट डिपेंड अपन लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा, और ये इट विल बी वेरी, वो आपको बहुत यूजफुल आएगा एवरी रेस्पेक्ट। वो थीसिस का मिलेगा, हो सकता है आपका कोई प्रॉब्लम मिल जाए उससे एंड में। दूसरा, कॉन्फ्रेंस का आता है कि कहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या है। हमारा हुआ था अगस्त में, हम लोगों ने किया था, वो भी आया था उसमें। फिर कॉन्फ्रेंस के बाद रिपोर्ट आया उसका। तो वो सब से होता है कि बीच में आपको अभी तो छूट दे दिया है रिसर्च पेपर की कंपलसरी न्यू नॉर्म्स में, लेकिन जो छूट नहीं है फॉर प्रेजेंटेशन, आपको एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना पड़ेगा वो, एंड यू हैव टू शो इट। तो कॉन्फ्रेंस मेरे टॉपिक के रिलेटेड कहाँ हो रहा है, वो भी डाटा आएगा आपको एवरीथिंग। सो एंड मोर ओवर, इसके कितने सस्ते हैं वो देखो, 450 का साल में, एवरी वीक यू गेट ए कॉपी। और आई थिंक 2 साल का 900 रुपये स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सबसे कम है वो प्राइस। तो जो दिल्ली वाले हुए, आप में कोई दिल्ली हो, एनसीआर की हो, तो गो देयर, एक बार जाके, उनके खुद की लाइब्रेरी है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, बस यूजीसी के पास ही है। अगर आप मेट्रो में जा रहे हो तो जो उसको, वो जो सेंटर है बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ पे उतर के आप चल के चले जा सकते हो, आईटीओ से मेट्रो पे उतर के। तो वहां जाके एक बार विजिट कर लो और वहां सब्सक्रिप्शन ले लो, और जो ग्रुप है आप मिल लो साथ में आपस में, कि एक आदमी जो गए तो 3-4 लोगों का कैश पे कर दो, सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर दिन की आपका मान लो ये दिसंबर है, अगर आप आज सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपको 1 जुलाई नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग से चालू होता है वो। इट्स वेरी यूजफुल उसमें। तो दैट यू कैन डू फॉर दिस अबाउट। देन कई पेपर्स आते हैं, आप हम रिव्यू की बात कर रहे हैं तो रिव्यू भी आते हैं उसमें, आर्टिकल, थियोरेटिकल आर्टिकल, रिसर्च स्टडीज आते हैं। क्या पता आप जो कर रहे हो उसमें ही स्टडी मिल जाएगा लेटेस्ट, और वो जो आता है वो लेटेस्ट ही होगा। सो दैट मच इट इज वेरी यूजफुल। सो पब्लिश्ड बुक्स ऑन रिसर्च हो गए। देन न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन रिसर्च। न्यूज़पेपर्स में, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी रिसर्च के फुल नहीं आते हैं, बट रिसर्च फाइंडिंग्स आते हैं। मैंने बताया भी था टाइम्स ऑफ इंडिया का कि आई थिंक ट्यूजडे एंड थर्सडे जो सप्लीमेंट्री आता है बाय द नेम ऑफ सिटी। दिल्ली में दिल्ली टाइम्स, गुड़गांव में गुरुग्राम टाइम्स, फरीदाबाद में फरीदाबाद टाइम्स, ऐसे आते हैं। तो उसकी जो कलरफुल पेजेस आते हैं, बीच बीच में वो रिसर्च स्टडीज की भी आते हैं जो वार्ड लेवल पे होती है, अलग अलग, इंडिया का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। तो वो अगर देखा है कि आपके टॉपिक रिलेटेड है, तो आप उसके कटिंग रखो, और भूलना नहीं कि डेट मेंशन करना उसमें, आप पेन पे लिखो, क्योंकि जो कट कर रहे हो वहां डेट नहीं होगा, वो कटिंग करके वो रखते जाओ, क्योंकि हो सकता है अगर रिलेटेड है तो, नहीं तो जरूरी नहीं है। अगर आपके टॉपिक पे रिलेटेड नहीं है तो
डजंट मैटर। सिमिलरली थियोरिटिकल के लिए भी हेल्प कर सकता है वो। तो न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर नहीं है घर में, क्योंकि आप अगर आप वो है तो आप अगर आप डेली जाते हो, पढ़ने के टाइम होता है, तो डजंट मैटर अगर लाइब्रेरी में। और अदरवाइज अगर नहीं होता है टाइम और वो, देन न्यूज़पेपर तो नॉर्मली होता होगा आपके सबके घर में, नहीं है तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करना न्यूज़पेपर। गो फॉर रादर ईयरली सब्सक्रिप्शन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी, कोई भी जो आपको लगता है, एक एटलीस्ट वन आप जरूर वो करो। तभी जो लोग फुल टाइम रिसर्चर होते हैं, जो फेलोशिप से, चाहे यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर होते हैं, तो ये सब जो मैंने बताया उसके लिए पैसे मिलते हैं, कंटीजेंसी ग्रांट अपार्ट फ्रॉम फेलोशिप। ये सब बिल दे दो तो आपका एडिशनल खर्चा भी नहीं कटता उसमें। बट आई थिंक आप सभी में तो वो जो है एम्प्लॉयर्स है, पार्ट टाइम रिसर्चर्स हैं, तो एटलीस्ट ऑन योर ओन दिस विल हेल्प यू, वो आपको एक्सपेडाइट भी करेगा रिसर्च के लिए। सो दीज आर सम इंटरवेंशन यू मस्ट डू। देन ऑनलाइन रिसोर्सेस, तो इंटरनेट घर में होगा ऑलरेडी, नहीं है तो फिर आई थिंक यू कैन गो फॉर इट, ऑनलाइन सोर्सेस एंड बिकॉज इफ यू आर एम्प्लॉई, आपको ऑफिस में पूरे टाइम तो मिलेगा नहीं। सो ऑनलाइन सोर्सेस में ये सारी चीजें जो ऊपर है वो ऑनलाइन वर्जन भी हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज। उसके अलावा भी और कोई है तो यू कैन ऐड। सो दीज आर एग्जाम्पलरी वेयर वी गेट द रिसोर्सेज फॉर राइटिंग रिव्यू। Just wait, I think there is a message in the chat. Okay. Okay, now journals database. This is specifically referring to journals. हर एक जर्नल्स हम खरीदना मुश्किल है, पहले वो पता था, बट जर्नल्स की डेटाबेस हैं आजकल, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस, बट यू टेक द आईडी एंड अदर थिंग फ्रॉम अपने जो लाइब्रेरियन से, सो दैट यू हैव फ्री एक्सेस टू द जर्नल्स। तो ये जर्नल्स हैं, एक तो फ्री है ये जो www.palgrave.journals.com, ये खुलता है, मैंने ट्राई भी किया उसको। देन EBSCO, इट इज ऑल्सो ए डाटाबेस। EBSCO एक्चुअली ये है फुल नेम है इसका, एल्टन BS कंपनी इज EBSCO। इमेराल्ड, थॉमसन रिटर्स, प्रोक्वेस्ट। प्रोक्वेस्ट इसके अलावा जर्नल डेटाबेस को भी पब्लिश करता है, डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल, उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स होंगे, डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल। तो प्रोक्वेस्ट एक्चुअली होता क्या है, ये सब जब करोगे ना सर्च, और वो इवन फ्री वाला भी, और वो एब्स्ट्रैक्ट्स दिखाएंगे, एंड आफ्टर दैट फॉर डिटेल, फिर आपको अच्छा लगा, अंदर जाना चाहते हो कि क्या टूल यूज किया है, कैसे स्टडी किया, क्या एनालिटिक मॉडल यूज किया है, देन यू नीड टू परचेज, वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन सेज जर्नल बाय सेज पब्लिकेशन, जेस्टर, देन देयर आर मेनी अदर ओपन एक्सेस जर्नल्स। तो ये सारे हैं विच यू कैन रेफर टू, और उसमें देयर आर सर्च मेथड, हर एक में होता है, तो सर्च से अपना सर्च करके पार्टिकुलरली यू सेव करो लैपटॉप में, या फिर राइट डाउन वॉट एवर इज पॉसिबल। ओके, जब अगर कोई चीज़ डाउनलोडेड नहीं है तो सेव नहीं कर सकते हो, या कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो, तो जैसे भी दैट ऑल दिस यू नो एक्वेंटेड ऑल्सो। What is required is that these are the database. Then moreover, there are subject specific, और भी कोई हो सकता है respective, so that you can add. These are exemplary, where journal database are the rich sources of getting you the review. Next, writing review. आपने source data ले लिया जो भी है, but how to write it? देखो, that as a researcher, research has its own language. Language means यहाँ पे style of writing. जैसे एक जर्नलिस्ट होता है, अपना रिपोर्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका लैंग्वेज अलग होता है, रिसर्चर्स लैंग्वेज अलग होता है, ऑथर का एक होता है,
सो असाइनमेंट बनाते हैं वो अलग होता है, बट रिसर्च इज इट्स ओन लैंग्वेज, जैसे हाउ टू राइट रिव्यू और इन प्रेजेंटेशन भी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। क्या होता है उसमें, देयर आर 3 स्टाइल्स जब हम लिखते हैं ऑथर की कोट में। तो वन इज ऑथर एट द बिगिनिंग, इस केस में स्विगलमैन 2007, ये ऑथर है। यहाँ पे कौन सी सोर्स है दिखाया नहीं है, बट ये लिख रहे हो, और ये ऑथर बिगिनिंग में है। इन इज स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट एंड life satisfaction of a Latino college student found that bicultural individuals reported higher psychological adjustment and life satisfaction than non-bicultural individuals, and that perceived bicultural was a significant predictor of psychological adjustment and life satisfaction। यही है उसमें। ये इसका जो डिटेल जो सोर्स है वहां तो बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, उसका जो रिलेटेड पार्ट है किस ईयर में स्टडी हुआ था, क्या फाइंडिंग था, ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स आ रहे हैं उसमें, तो ये रिपोर्ट किया उसमें। ऐसे ही रिपोर्ट करना पड़ता है। इसमें जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता है, जिसको डिटेल है वो स्पीगल में कौन सी बुक कहाँ से किस यूनिवर्सिटी पे हुए थे वो आएगा आपका बिब्लियोग्राफी। तो ये जो अंदर होती है टेक्स्ट उसमें लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन टेक्स्ट रेफरेंस, इन टेक्स्ट रेफरेंस। तो ऑथर एट द बिगिनिंग, बट हम उसको आगे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कंटेंट यही है, यू कैन सी दिस एग्जांपल, सेम कंटेंट, ऑथर इन द मिडिल, इन स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट एंड लाइफ सिचुएशन ऑफ लाटिनो कॉलेज स्टूडेंट्स, स्विगलमैन 2000 फाउंड दैट, आगे वही चीज है, बिगिनिंग मिडिल में आ गया था। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू राइट ऑथर एट द एंड, एवरीथिंग डन, उसके बाद स्विगलमैन 2007, रिमेंबर दैट फुल स्टॉप उसके बाद आता है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। और ये डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ईयर ब्रैकेट में, ठीक है, और इन दिस केस ऑथर प्लस ईयर ब्रैकेट में है जब एंड कर। बाकी दो केस में द ईयर इज फॉलोड बाय दिस ऑथर, ऑथर मीन नॉर्मली सरनेम लिखते हैं हम, स्विगलमैन 2007। नाउ राइटिंग दिस, व्हाट इज द एडवांटेज? उससे क्या होता है कि जब रीडर है उसको थोड़ा मोनोटोनी ब्रेक हो जाएगा एंड इट लुक्स गुड। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, मास्टर्स थीसिस करते हैं, हम ज्यादातर यू फाइंड कि वो बिगिनिंग में जो फर्स्ट स्टाइल है ये अडॉप्ट करेंगे ऐसे। बट एट पीएचडी लेवल यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ की जो मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए अलग अलग उसमें लिखो उसमें ऐसे, दैट गिव्स यू गुड। एंड सेकेंडली और एक उससे फायदा होता है एज ए रिसर्चर कि जो आपका एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा बाय रीडिंग, अच्छा इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया, आई थिंक ही नोज हाउ टू राइट रिव्यू। तो ये एक फायदा है उसमें। नहीं तो अगर आप सारे भी रिव्यू इस टाइप ऑफ लिख देते हो, स्विगलमैन 2000 सारे बिगिनिंग होता, गलत तो नहीं है वो, गलत नहीं है वो भी हो जाएगा। लेकिन एज ए पीएचडी स्टूडेंट आप थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबल वे में लिखोगे रादर देन मोनोटोनी, तो वो बेटर है, वो ऐसे लिखोगे तो इसमें भी देखो इन्होंने वो कथन ने कैसे किया हो बिगिनिंग और ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर लिखा, और देन ये देखो एंड पे किया है, एंड पे ये भी मिडिल पे है और रिव्यू इट इज विजिबल, देन अगेन स्टार्टिंग एंड, तो ऐसे से जैसे लगे वो कर देना। कभी कभी जो रिव्यू है इसी टाइप का प्रेजेंट होता है अच्छा कि एज इट इज फिट हो जाता है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है उसमें। बट ज्यादातर केस में यू नीड टू पैराफ्रेज योरसेल्फ, अपने को ही करना पड़ता है वो टेस्ट लेके उसमें कि मैं रिव्यू में कैसे दूं, और वो क्योंकि उसमें देखना है कि वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, पंक्चुएशन सही है, ये सारे देखना है। मास्टर थीसिस में चल जाता है वो तो ऐसे पेस्ट कर देते हैं जो लाए हैं। और दूसरा थोड़ा सा आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, एस्थेटिक मींस एक रिव्यू आपने डाल दिया कि ये 1.5 पेज तक रन किया है एक रिव्यू, दूसरा रिव्यू 4 लाइन है, उसके बाद फिर कोई है कि वो
फिर एक पेज में है, कोई फिर आधा पेज में। वो थोड़ा सा मेंटेन करो कि जो एक रिक्वायरमेंट होती है रिव्यू की, बाय सेपरेट पारा, और हर एक रिव्यू को अगर ज्यादा है तो सेपरेट पारा, और जहां पे कंटेंट रिमेन्स द सेम कि सिमिलर वेरिएबल पे है, यू कैन गो फॉर जॉइनिंग ऑल्सो। जैसे स्टडी में साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट की लाइफ सेटिस्फेक्शन है और एक स्टडी आपको मिला, तो यहाँ पे फिर शुरू कर दो उसका, उसमें प्रोवाइडेड अगर वो पारा बड़ा नहीं है तो। अगर पैराग्राफ बड़ा है तो यू नीड टू सेपरेट इट आउट और फिर अलग अलग करो। टू ऑथर्स इन सेम पारा, वन ऑथर एवरीथिंग, वो ऐसे हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, देयर लेट अस कम टू द प्रैक्टिकल। हम कितना भी कोशिश करें, वो जो रिव्यू रिलेटेड है, ओके फाइन, उसके बाद जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो 3 या 4 लाइन का मिल रहा है, आगे तो नहीं मिल रहा है, कितने कोशिश के बाद, तो भी आप रिपोर्ट करो, डजंट मैटर। बट उसके आगे जो है वो तो फॉर एस्थेटिक उसका बढ़ाने के लिए यू कैन ज्वाइन इट, कंबाइन कर लो उसको। और बहुत बड़ा रिव्यू एक मिल रहा है 1.5 पेज का, तो उतना रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको पैराफ्रेज करो और एक पारा में उसको ये करो। कोई भी रिव्यू आप डो नॉट मेक इट कि एक से दूसरे पारा तक ऐसे नहीं करना है, वो एक एक पेज नहीं होता है। डोंट राइट रिव्यू एक एक पेज तक ये करो उसमें। तो ये इसी टाइप का ये अबाउट द राइटिंग द रिव्यू। मिडिल देन द एंड। नाउ जब रिव्यू कंप्लीट हो जाता है एवरीथिंग, देन एट द एंड राइट ए कंक्लूजन ऑफ द रिव्यू। मास्टर थीसिस में तो रिव्यू कर देते हैं, कंक्लूजन होता भी नहीं है कई जगह, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। रिव्यू आपने रिव्यू किया, बट फाइनली उस रिव्यू का सारांश क्या है, व्हाट इज द समरी, क्या फाइंडिंग है वो। सो यू नीड टू राइट, ये एक भी एग्जांपल है। द रिव्यू अबव शोज दैट सोशल एडजस्टमेंट एंड लाइफ सिचुएशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन स्टडीड with respect to socio-cognitive factors, academic performance, and social interaction, but do not reflect upon whether high academic performance is an indicator of better social adjustment or life satisfaction। ये जो पार्ट है वो उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, तो जस्टिफाइज कर रहे हैं। ये तो स्टडी उसके ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन इस एरिया में ये रिव्यू में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया आपका गैप जो आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। ठीक है, दिस कॉल्स फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड। तो आपने फिर जस्टिफाई भी कर दिया एट द एंड कि ये स्टडी का। सो कंक्लूजन इज ए मस्ट फॉर ऑल पीएचडी प्रोग्राम्स, इसके जो रिव्यू, तो कंक्लूजन ऑफ द रिव्यू ये गिव। तो थोड़ा सा अभी जो पेपर 2 है उसमें जो करोगे काम, वो उसी में ही एंड पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करोगे 2023 में अराउंड फरवरी एंड या मार्च में, तो यू राइट योर कंक्लूजन ऑफ रिव्यू ऑल्सो। और अगर आपने मोस्ट लाइकली सारे लोगों ने वही रिव्यू करते होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं ना, तो वो जो रिव्यू बन रहे हो, अगर आप उसी के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो आपका चैप्टर 2 बन रहा है, चैप्टर 2 का शुरुआत हो चुकी है, बट कंपलसरी नहीं है। बाद में आफ्टर कोर्स वर्क अगर आप चाहते हो कि मैं और एक एरिया पे काम करूं तो कर सकते हो, उसके ऊपर रिव्यू फिर डेवलप करना है। और तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी हम बिगिनिंग ही तो किए हैं, तो इफ यू थिंक ऑफ कि मुझे और कोई एरिया में करना है रिसर्च और वो, तो यू कैन चेंज योर माइंड और वो रिव्यू आप और दूसरे डायरेक्शन में दे दो। दिस इज टू सेव योर टाइम और करने के लिए, क्योंकि एक पेपर कोर्स वर्क करना जरूरी नहीं है कि वो आप जो प्रॉब्लम कर रहे हो उसके रिव्यू जरूरी है, और वो बट ये फायदा होती है उसकी। तो जो मैंने कहना चाह रहा हूँ ये है कि बी क्लियर, आप अपने सुपरवाइजर से अगर अलर्टेड नहीं है तो अलर्ट कराओ और सुपरवाइजर से डिस्कस करो कि ये एरिया में करना चाहते हो। तो उसके ऊपर अगर आप रिव्यू हो जाता है, जो सबमिट करोगे वो
फिर आपको आपको रिव्यू उसमें फिर आपको ऐड करना है, या फिर न्यू जो स्टडी है वो ऐड करना है, राइटिंग का रिफाइन करना है कि उसमें जो एज ए पार्ट ऑफ सबमिशन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो भी चल जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लेकिन थीसिस में तो नहीं चलेगा ना वो, तो तब वो पार्ट रहेगा आपका। सो इट इज अप टू यू, पहले से स्टार्टिंग से ही आप ये करोगे तो इट विल सेव योर टाइम ऑल्सो। सो कंक्लूजन ऑफ रिव्यू नाउ, रेफरेंस। आई थिंक आपका दूसरा क्लास है ना 12 बजे, तो व्हाट विल डू, ये भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। दिस इज एज पर दिस रेफरेंसिंग डिफरेंट स्टाइल पे होती है अबाउट योर for different subjects also. But normally management, social science and this we follow the referencing style of APA style, APA, American Psychological Association, वो style follow करते हैं, उसी का है वो, that one. So what we'll do, ये हम अगले क्लास में डील करेंगे उसके about how to write review, क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा उसमें, anyway to see for with some examples also about referencing. हाँ, ये बता देता हूँ कि that in-text review, I mean when we do about in-text review, ये जो अंदर जो thesis के होती हैं writing, you can see जैसे ये अंदर अंदर देखो पैराग्राफ में वो रिव्यू करते गए हैं, इसके रिव्यू और दिस फाइंडिंग इन्होंने सब टॉपिक वाइज भी रिव्यू किया हुआ है उसका, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलग है, ये भी कर सकते हो, ये डिफरेंट रिव्यूज है। देन ये रिव्यू जो है, जैसे यहाँ पे लीच 2005, तो लीच का 2005 वो जो है आगे आएगा इन योर बिब्लियोग्राफी, इसमें जैसे बिब्लियोग्राफी इस पॉइंट पे दिस आई एम कोटिंग बिकॉज ये एक ओरिजिनल थीसिस है पीएचडी का, तो ये अल्फाबेटिकली जो होता है थीसिस है। तो रेफरेंसिंग जो अंदर बुक के अंदर देते हैं, ये हमने ये इस सोर्स से है मटेरियल, तो वो होता है इन टेक्स्ट रिव्यू, और उसके डिटेल्स जो आता है दैट इज योर बिब्लियोग्राफी, एंड पे आएगा वो। सो बट हाउ टू राइट दैट रिव्यू, जो नॉट रिव्यू, इन टेक्स्ट रिव्यू, जैसे कोट करने के बाद, और जो ओरिजिनल सोर्स, डिफरेंट सोर्सेस एंड अदर, that will continue in the next class. Okay, so now anything about any question, anything on so on, so that आपको 5 मिनट ब्रेक भी मिल जाएगा for next class, और 10 मिनट है।